Okay, guys, welcome to IDQ Value Adder, and today we are starting our phase 2 grammar. Okay, so I think by seeing my background, you can understand what we are going to learn today. Okay, Yes. so I know आप लोग बहुत लोगों को पता होगा what is passive, what is active sentences, but still we will be starting from new, from the beginning. Okay, so here comes our slide. We call it voice change. This is very important. very important. हम लोग अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो कितना परसेंटेज सेंटेंस हम लोग पैसिव में बोलते हैं और कितना परसेंटेज एक्टिव में बोलते हैं. This is very important to be, known. If I ask you right now, suppose, Rishita, what do you think whenever you speak in English, what is the percentage of passive sentence you use? What is the percentage? I think it's a less percent, sir, because I usually use that active sentences to communicate others. No, means if you have to speak any percentage, then वो क्या percentage होगा? What will be the percentage? 25%? 25%. Somehow it's a very good percentage. Okay. But Then it's 25% ये important है. Okay, so okay, आपके presentation में हम देखेंगे आप कितना use करते हो. Okay, I think वो better होगा. So we have Kasturi. Kasturi, any idea about passive sentences? I think 30%, 35% and 40. No, but I'm talking about how much you speak. I'm not talking about कि क्या होना चाहिए. हम ये बोल रहे हैं कि कितना आप जब इंग्लिश में बात करते हो. Do you know about passive? कभी आपने मैंने तो what do you think? How when you speak, how much passive sentence you use? I think I have used 25 to 30% passive. Okay. Okay, so Oh, wow, that's good. It means आज हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो सब लोग आगे एकदम जल्दी जल्दी से बोलने लगोगे, जल्दी जल्दी से बोलने लगोगे. वेरी गुड. चलो वेरी नाइस. हम लोग देखेंगे फिर जाके. Yeah, let's go to Manushi. Manushi, what about you? I am usually 10%, 15% I use in passive sentence. Do you have any idea about passive sentence? Yes, sir, but now Thora, something Some in my confusion. school days I learned something, but after this 2 years, 3 years, I don't have even recollect. But yes, I know what is passive sentence and what is active sentence, but not now. I don't recollect that, but Okay, कोई when बात I नहीं. see, I recollect. That is fine. That is fine. So guys, आज हम लोग बात करेंगे active and passive. hello sir. Always remember. Yes, Devabruto. Yes sir. I'm giving you some example about passive and active, but अच्छा. I'm not sure. I'm trying. Okay. 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 So active sentence is the work I have done. The work have But done is active. active. So passive is this work has done by me. This is a passive, I think. you told both the sentences passive, Devabruta ji. Okay, Devabruto. But I कोई have बात some नहीं. confused. When you That's why tried, I'm telling you. Devabruto आपने ट्राई किया वही बहुत है. अब हम Okay, लोग sir. सीखेंगे चीज को कैसे हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे. ठीक है. Okay, sir. तो Okay, चलिए okay. फिर हम लोग स्लाइड में जाएंगे एक एक करके. एंड आई विल मेक दिस क्लास मोर इंटरैक्टिव सो दैट एवरीबॉडी दे कैन स्पीक. ओके, क्योंकि इंटरैक्टिव करना ही पड़ेगा. देखो, सबसे पहला बात यह है कि पैसिव क्यों इंपॉर्टेंट है. एक्टिव तो ऐसे ही
इंग्लिश बोलने में सबका टेंशन है, ऊपर से एक्टिव, ऊपर से पैसिव, माय गॉड, एक टेंशन नहीं जा रहा है, एक और टेंशन आ गया। गाइस, these both sentences are very important, and if you really want to be a versatile speaker in English, अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको अपने स्पीच में, अपने टॉक में एटलीस्ट 30 to 40% पैसिव सेंटेंस को यूज करना ही पड़ेगा। आई थिंक मैं अगर ये बोलूं करना ही पड़ेगा नहीं, एक अच्छा स्पीकर करता है। I'll not make it a compulsion, ये compulsion नहीं है कि करना पड़ेगा, but if you really want to be a versatile speaker, then it is important. Passive sentence is very important. एक और बात, पैसिव सेंटेंस का यूज आप अगर अपनी मातृभाषा में भी बात करते हो, लाइक आप अगर हिंदी में भी बात करोगे, यू नो, इफ यू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, आप देखोगे पैसिव सेंटेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज मेरे घर में एक मेहमान आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ सम गेस्ट कम्स टू माय हाउस, तो मैं अपने गेस्ट, सपोज वो गेस्ट निकल रहा है, यू नो, बहुत देर तक बैठा, फिर वो निकल रहा है, तो मैं अपने गेस्ट को बोलना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा ठहरो, खाना बन रहा है, खा के जाना। रुको, खाना बन रहा है, खा के जाना। सो खाना बन रहा है, हम लोग बहुत कम बोलते हैं कि अरे मम्मी खाना बना रही है, खा के जाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मली यही बोलते हैं, अरे यार खाना बन रहा है, खा के जाना। ये खाना बन रहा है, खा के जाना, ये पैसिव सेंटेंस है। खाना बन रहा है, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना रही है, ये एक्टिव सेंटेंस है। खाना बन रहा है मम्मी के द्वारा, ये पैसिव सेंटेंस है। मैंने एक चूहे को मार गिराया, एक्टिव सेंटेंस है। चूहा मर गया, ये पैसिव सेंटेंस है। Are you guys understanding this? एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस यही है कि जब आप एक्टिव में बात करते हो तो जो काम आप कर रहे हो, यू नो, वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, उसमें डूअर से स्टार्ट होता है सेंटेंस। लाइक आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। तो कौन खाना खा रहा है? मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग फूड। तो आप देखो यहाँ पे जो डूअर है वो पहले है, लेकिन जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। इसीलिए देखो, ऐसा सेंटेंस शायद हम लोग नॉर्मली नहीं बोलते, वी डोंट स्पीक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंस लाइक 30 to 40 to 50% सेंटेंसेस हम लोग ज्यादातर पैसिव में ही बोलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा इंग्लिश में बोल रहे हो, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। और मैं देख रहा हूं कि आप लोग, यू नो, व्हेनेवर यू स्पीक राइट इंग्लिश। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, आप लोग इंग्लिश तो बोल रहे हो लेकिन इंग्लिश में पैसिव सेंटेंसेस है ही नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। आप तो बहुत खुश हो गए, माय गॉड आई एम स्पीकिंग सो गुड, मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में पैसिव सेंटेंस नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जो बोल रहे हो सकता है ग्रामेटिकली सही हो, लेकिन आप अच्छा इंग्लिश तभी बोल पाओगे जब आप एक्टिव और पैसिव दोनों बोलोगे। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मानुषी, सपोज आपको बोलना हो
अगर आपको ये बोलना हो कि मूवी स्टार्ट हो चुकी है, Movie इसको आप started. कैसे बोलोगे? Movie has started. मूवी Started. हैज स्टार्टेड। Movie had started. मूवी स्टार्ट हो चुकी है माने हो चुकी थी होगा तो हैड होगा, Had होगा. हो Movie चुकी has. है बोलोगे तो पैसे मतलब एक्ट मतलब क्या बोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मूवी हैज स्टार्टेड। अच्छे से सुनो मेरी बात, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल आई एम गिविंग। मूवी हैज स्टार्टेड। अच्छा, आई हैव स्टार्टेड, एक है आई हैव स्टार्टेड। आई हैव स्टार्टेड का हिंदी क्या हुआ, क्या होगा, को कौन बताएगा? आई हैव स्टार्टेड का हिंदी क्या क्या होगा? आई हैव स्टार्टेड শুরু করেছি in Bengali we say আমি স্টার্ট করেছি, in হিন্দিতে হবে এটা मैंने हम शुरू स्टार्ट किया किया है। আমি শুরু করেছি राइट, एब्सोल्युटली, मैंने स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया है। आई हैव स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट किया है, यू नो आई हैव स्टार्टेड। अब मैं बोल रहा हूं मूवी स्टार्ट हुआ है और हम बोल रहे हैं मूवी हैज स्टार्टेड। अब एक बात बोलो, आई हैव स्टार्टेड में डूअर कौन है? I doer. I yes sir. I- I me. I have Yes, sir. started because I have started। Yes sir. Yes sir. अब एक बात बोलो, मूवी हैज स्टार्टेड, ये मूवी क्या कोई इंसान है क्या जो अपने आप को स्टार्ट कर दिया? नहीं सर। तो मूवी हैज स्टार्टेड माने मूवी ने स्टार्ट किया है। अरे मूवी ने क्या स्टार्ट किया है? आई हैव स्टार्टेड माने मैंने स्टार्ट किया है, मूवी हैज स्टार्टेड मतलब मूवी ने स्टार्ट किया है। चलो मैं स्टार्ट कर सकता हूं, मूवी ने क्या स्टार्ट किया है? अरे भाई मूवी को स्टार्ट किया गया है, मतलब किसी ने स्टार्ट किया है, किसी ने तो स्टार्ट किया है, राइट? Yes. तो Movie has जिसने started by स्टार्ट someone. किया है वो डूअर है, जिसने स्टार्ट किया है वो डूअर है। इसका मतलब है कि मूवी डूअर नहीं है, इसका मतलब है कि मूवी आरोपी है, किसी ने मूवी को स्टार्ट किया है, Rest of. यहाँ पे आरोपी है। तो पैसिव में क्या होता है, आरोपी पहले आ जाता है। तो आपने सही बोला मानुषी, मूवी हैज स्टार्टेड तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक वर्ब ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा, कौन बोल सकता है? The movie has been started. एब्सोल्युटली Movie राइट। has been started. मूवी हैज बीन स्टार्टेड मतलब मूवी को स्टार्ट किया गया है। आई हैव स्टार्टेड मतलब मैंने किया है, मूवी हैज बीन स्टार्टेड मतलब मूवी को स्टार्ट किया गया है। मूवी अपने आप को स्टार्ट नहीं कर सकता, मूवी को स्टार्ट किया गया है। सो गाइज व्हेनेवर यू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो लोग बोलते हैं मूवी हैज स्टार्टेड। सो गाइज हाउ कैन मूवी बी स्टार्टेड? मूवी इज नॉट अ डूअर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत लोग हैं, यू नो देयर आर मेनी पीपल दे स्पीक इन इंग्लिश बट दे डोंट स्पीक पैसिव सेंटेंसेस। हाँ, अब क्या है कि उनका एक्टिव सेंटेंस ठीक है बोल के वो जो बोलना चाहते हैं लोग समझ जाते हैं, पीपल दे अंडरस्टैंड। बट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग अलग चीज होता है और एक होता है कि मेरे को करेक्टली इंग्लिश बोलना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Okay, so guys, we are going to start passive sentence today, and your first sentence is coming on your screen, and I want Devobroto to start the day. So Devobroto, you can see the active sentence I love English. What will be the passive sentence? I have loved English. I love English. You can see the screen. Yes sir. फास्ट, अब जल्दी से जल्दी बता दो इसका पैसिव क्या होगा। आज पैसिव को हम चुटकी में सीखेंगे।
यस, स्कूल कॉलेज में भी हमने ये सब सीखा है, लेकिन जो भी सीखा था बहुत लोग भूल चुके हैं, क्योंकि जैसे हमें सीखना चाहिए वो वैसे हमें सिखाया नहीं गया। आज आप अगर अगले 1 घंटे तक अच्छे से देखोगे ये मूवी को, मैं बता रहा हूँ आप कभी भी कोई भी सेंटेंस को पैसिव कर सकते हो। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। या देवव्रतो बताओ, आई लव इंग्लिश का पैसिव। गूगल सर्च मत करना बस। हाँ चलो। I have loved English. Loved English. I have loved English is the passive sentence. I have loved English is the passive according to you, Devabroto. देवव्रत, एक चीज मैंने बोला था ना कि जो डूअर होगा वो लास्ट में चला जाएगा, जो आरोपी होगा वो पहले आ जाएगा। पैसिव के समय इस चीज का ध्यान रखो। Okay, sir. The English has laughed by me. Yes, The English has laughed by me. the English have loved by me. The English has laughed by me. अच्छा, English has. Okay, English has loved by me. Yes, sir. Okay, Manashi, what do you think? Is it the right sentence? No, English have loved by me. ट्राई कर सकते हो, आज तो आप लोग फ्री हो, गलत कर सकते हो। बहुत कॉन्फ्यूज लग रहा है सर। Loved by me. अच्छा है ना, आप लोग कंफ्यूज हो गए तभी तो मजा आएगा क्लास में। English, the love. I love English. Okay. English has loved by me. English has loved by me. Okay. एक बार ऋषिता से पूछते हैं। ऋषिता, क्या ऋषिता? Sir, English is loved by me. The English. The नहीं, English is loved by me. अच्छा, English is loved by me. English is loved by me. Okay. तो एक सेंटेंस हमें और मिला, that is English is loved by me. And guys, this sentence is the right sentence. Absolutely right. Thank you very much. So please आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, I love English का पैसिव होता है English is loved by me. ये कैसे हुआ, आप इस सफर में रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप लोग ऐसे देख रहे हो जैसे क्या हो रहे हैं। आप लोग लिख लिए हो ना ऑलरेडी? या देवव्रत, हैव यू रिटन? Yes, sir. Already have done the screenshot. हाँ, क्या? Already have done the screenshot. Okay, अच्छा, you are smart. Screenshots. Okay guys, so this is the correct sentence. English is loved by me. तो एक चीज अभी हम लोग इसको भी करेंगे और साथ ही साथ हम लोग रूल्स जानेंगे कि पैसिव करते समय क्या क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ओके, सो एक जगह पे आप रूल्स लिखना और एक जगह पे आप सेंटेंसेस लिखना, बिकॉज रूल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर कम्स द फर्स्ट रूल। ये जो रूल आप देख रहे हो, ये फर्स्ट रूल बोलता है कि आरोपी पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट पार्ट आएगा। और कभी भी अगर सब्जेक्ट पार्ट आता है वो बाई के साथ आएगा, बाई। ये दिमाग में रखना, सब्जेक्ट पार्ट कभी भी आएगा तो उसमें बाई लिखा रहेगा। तो इस रूल्स के हिसाब से मानोशी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट पार्ट हियर? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आरोपी हियर? Sir, what is the full form of ROP? I have some confused. आरोपी, रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। जो वर्ब के बाद जो है, वर्ब खत्म जब होता है उसके बाद जो रहता है वो होता है आरोपी। आरोपी मतलब रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। Rest of predicate. यस, ये एक प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट के अंदर वर्ब होता है और रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट होता है।
तो प्रेडिकेट पार्ट होता है जहां से वर्ब स्टार्ट होता है और एंड तक। अब वर्ब को अगर हटा दे तो रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का बाकी पार्ट रहेगा, इसीलिए उसको आरओपी बोलते हैं, रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। सवाल अच्छा है, बहुत लोग जो नहीं पता वो लोग समझ जाएंगे। यस मानुषी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आरओपी हियर? आरओपी जो वर्ब के बाद Him. आता है। Him. एब्सोल्युटली, तो हिम Him. है तो यहाँ पे भी हिम आ जाएगा, लेकिन हिम जब सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो वो हिम नहीं, वो ही हो होगा। जाता है। Okay. ही Yes, हो sir. जाता है। अब ही है। अब वर्ब क्या क्या है? वर्ब है विल बी किलिंग, तो वर्ब डाल दो विल बी किलिंग। उसके बाद है सब्जेक्ट पार्ट, तो हो By जाएगा her. पार्ट को हम लोग बाई दे के लिखेंगे, By her. तो बाई शी नहीं होता है, बाई हर हो जाएगा। Her. शी होगा तो बाई हर होगा, ही होगा तो बाई हिम होगा। सो सेंटेंस अभी बन गया, ही विल बी किलिंग बाई हर। मतलब ये सेंटेंस, ये पैसिव सेंटेंस नहीं है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि पैसिव रूल्स के साथ साथ कैसे हम पैसिव बनाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो रेड बेस में है, हम इसको ट्राई कर रहे हैं पैसिव बनाने का, लेकिन अभी तक ये नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि सिर्फ एक रूल से कुछ होने वाला नहीं है, हमें और ज्यादा रूल्स चाहिए। ठीक है, पैसिव के वी नीड मोर रूल्स। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसको फिर से देखेंगे। सो ये पहला रूल क्लियर है सबको? या कस्तूरी, आर यू गेटिंग द रूल्स? Yes, sir. अर्चना, अर्चना, you are getting the rules? Okay, let's go ahead. अब मैं पूछूंगा मानुषी से। मानुषी, टेल मी ये सेंटेंस, आई एम कॉलिंग यू, इसका पैसिव बताओ। I am calling you. You का अच्छा, यू को पहले आ जाएगा, यू, you उसके बाद वर्ब आएगा। you are अच्छा, एम आता है, लेकिन यू के साथ एम नहीं लगता है, यू के साथ You- आर लगता है। you are उसके बाद कॉलिंग calling by me. बाय मी। ओके, वेरी गुड। रूल्स के हिसाब से आप सही कर रहे हो, लेकिन ये अभी तक सही नहीं हुआ है। ओके, लेकिन रूल्स के साथ जा रहे हो। सो दिस इज द ग्रेट थिंग दैट यू आर फॉलोइंग द रूल्स। आगे जैसे हम और आगे जाएंगे चीजें और क्लियर होंगी। देवब्रतो, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस? Yes, sir. This is right. इज इट राइट? Yes, sir. दिस इज नॉट राइट सेंटेंस। हाँ, रूल्स को फॉलो किया गया है, पहला वाले रूल्स को, लेकिन स्टिल अभी भी ये इनकम्प्लीट है। ओके, अर्चना, विल यू ट्राई? अर्चना, आप Yes, ट्राई sir. करेंगी? Yes, हाँ, sir. बोलिए अर्चना, बोलिए। You are being called by me. You are being called by me. Absolutely right, Archana. Very good. So guys, please आप इसको लिख ले। ये है राइट सेंटेंस, you are being called by me। ज्यादा टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम लोग रूल्स को देखेंगे आपको भी क्लियर हो जाएगा क्या होगा सेंटेंस। अभी हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक रूल्स को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। You are being called. You are being called by me। आपको कॉल्ड, आपको बुलाया जा रहा है मेरे द्वारा। You are being called by me। Fine, can I go ahead? Yes, ओके, जिनको ये ऑलरेडी पता है वो फिर से इसको अच्छे से देखे, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को भी मिले। ओके, नाउ आई विल गो टू कस्तूरी। अच्छा नहीं, कस्तूरी से पहले एक नया रूल सीखते हैं, क्योंकि एक रूल से काफी आप लोग अच्छा किए हो। चलो एक और रूल्स, चलो यहाँ पे दो रूल्स हैं। आरओपी प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट पार्ट, ये तो हो गया। अच्छा, दूसरा वाला बोल रहा है कि सब्जेक्ट पार्ट इज नॉट नेसेसरी हियर।
अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूं, शी विल बी किलिंग बाई हर, ये सेंटेंस था। अब से क्या करेंगे ना, सब्जेक्ट पार्ट को नहीं लिखेंगे, मतलब वो बाई हर जो है ना उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं पैसिव सेंटेंस में, हमेशा हम लोग वो बाई हर, बाई हिम, बाई मी, बाई यू ऐसे नहीं बात करते हम लोग। वी डोंट स्पीक लाइक दैट। आर यू गेटिंग एवरीवन? सो ऑलवेज रिमेंबर, अब से हम लोग Sir, your बाई voice को is not clear, sir. माई वॉइस इज नॉट क्लियर? Okay, sir. I'm able to hear you, sir. ओके, ही विल बी किलिंग। अब ये बाई वाला पार्ट हम लोग ने काट दिया, बाई नहीं लिखेंगे। मानुषी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब या मानुषी, यू आर अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. अब नंबर 3 देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 3 रूल्स, वर्ब इन पैसिव विल हैव वन एक्स्ट्रा वर्ब। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब एक्टिव में अगर एक वर्ब है तो पैसिव में 2 वर्ब होगा। एक्टिव में अगर 2 वर्ब है तो पैसिव में 3 वर्ब होगा। एक्टिव में अगर 3 वर्ब है तो पैसिव में 4 वर्ब होगा। तो देवव्रत, कितना वर्ब होगा पैसिव में? हाउ मेनी वर्ब्स विल बी देयर? एक्टिव में कितना वर्ब है? पैसिव में 2 वर्ब होगा। नहीं, अभी आप भी जो सेंटेंस आप देख रहे हो, शी विल बी किलिंग हिम, ये सेंटेंस में कितना वर्ब है? इतना लेट? आप लोग का टेंस खत्म हो गया है, आप वर्ब नहीं काउंट कर पा रहे हो? 2 वर्ब होगा सर। वाह 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 वाह, 2 वर्ब्स। Three अच्छा verbs. सिला दिया तूने and मेरी killing. पढ़ाई का। Will be killing. या मानुषी, हाउ मेनी वर्ब्स? So 3 verbs. 3 verbs, will be killing, Be verb will. will be killing, there are 3 verbs। इसका मतलब है कि पैसिव में 4 वर्ब होगा, 4। अब वो एक्स्ट्रा वर्ब कहाँ, कहीं तो बैठेगा, तो यहाँ पे अभी पता नहीं कहाँ पे बैठेगा, तो अभी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे वी और एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ठीक है? अभी हमको पता नहीं है कि कहाँ पे ये बैठेगा। सो लेट्स सी कहाँ पे बैठेगा। इसको एक वर्ब यहाँ पे ऐड होगा इस सेंटेंस में, याद रखना। ओके, अल्टीमेटली ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो इसको हम लोग पूरा करेंगे। अब फिर से हम एक नए रूल्स में जाएंगे। चलो एक नए सेंटेंस में जाएंगे। फॉर कस्तूरी, द नेक्स्ट सेंटेंस। यस कस्तूरी, आई हैव सेलिब्रेटेड ईद। आई हैव सेलिब्रेटेड ईद। What will be the passive sentence? You can try. Yeah, Kasturi? I have celebrated it. Yes. What will be the passive sentence? Eid. Eid. Very good. Eid. It celebrate. It celebrating. Eid celebrating. It celebrating by me. अच्छा, अभी बाई नहीं लगाएंगे। अभी रूल्स में हमने पढ़ा कि बाई नेसेसरी नहीं है, तो बाई को अभी हटा दो। By me. अब बाई को हटा देना है और एक एक्स्ट्रा वर्ब को डालना है। How many verbs are there in active sentence, Kasturi? Verb, sir. I have 2 verbs. celebrated and have. So 2 verbs. Celebrated and have. Yes, So इसका 2 मतलब है हाँ। कि पैसिव में 3 वर्ब 3 होगा। verb होगा.
He Yes, verb होगा. लेकिन आपके He हिसाब verb से होगा. एक वर्ब है, आपके बाकी वर्ब हाँ. कहाँ गए? Eid has celebrating. Sir, hello. Yes, yes. ना. So Can I Eid try has something? been Eid. Yes, Kasturi, tell me. Eid has been celebrate. Eid has been celebrating. बस Me. No, sir. Eid have been celebrating. By तो बाई नहीं लगाएंगे. me तो me नो सब्जेक्ट पार्ट. me पहले कुछ बार और सब्जेक्ट ऊपर पर भी ऊपर नहीं. 2 वर्ब है, नीचे ऑलरेडी 3 वर्ब है. और कितना वर्ब चाहिए आपको? ऑलरेडी तो 3 हो गया. हाँ, हो आई के बदले में क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा. नॉट but, नेसेसरी. बाई मी होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बाई मी हमने क्या देखा, रूल्स में बोल रहा है कि जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो बाई मी, बाई हर, बाई हिम, ये सब नहीं यूज करते. आप अगर यूज करोगे तो सही होगा, लेकिन आप अगर यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा. ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी. या देवोब्रतो, यू सेड समथिंग. Yes, already this point I want to say. Okay. Yeah. Have नहीं होगा, has होगा. So that's when I want to say that it ओके, यही बोलना has था. been celebrating. Yes, sir. So ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? Yes, sir. It has been celebrating. तो वो पहला वाला जो सेंटेंस है एक्टिव में, तो पास्ट होगा, तो इसलिए तो यहाँ पे हैज और हैव. नहीं है. पहला वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल. हाँ, यस सर, यस सर. प्रेजेंट पार्टिसिपल So- नहीं, परफेक्ट. Present perfect. यस. So it has been celebrating. That's why. ओके, मानुषी, व्हाट डू यू थिंक? इज इट द राइट सेंटेंस? I think बहुत कंफ्यूज लग रहा है आज, पता नहीं क्यों. इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हो. अभी इंग्लिश को ज्यादा मजाक में मत लो, अभी सीरियस हो जाओ. अभी पैसिव सीख रहे हैं हम लोग. तो क्या लॉक कर दे इसको? celebrating হবে না braided হবে সেটাই নেই. तो आप बताओ ना. आप बेटेड बोलोगे तो भी चलेगा, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा. इसको लॉक कर दे It has कि been आप चेंज करोगे इसको? नहीं सर, लॉक कर दीजिए. क्या पता आप ईडी लगाओगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा. क्या पता सेंटेंस अभी सही है, ईडी लगाओगे तो गलत हो जाएगा. आप मीडी अभी तो आप भी कंफ्यूज कर रहे हो. मैंने एक बार ये सुना था, it has been celebrated something on तो क्या करे, ईडी लगाए कि नहीं लगाए? it has been celebrated. अब लगा दीजिए, देखते हैं क्या होता है. क्या Lock होगा? किया मौत का सजा तो होगा नहीं. हाँ. Okay, thank you very much. The sentence is right now. Absolutely wonderful. It has been celebrated. Sentence is right. Eid has been celebrated is the right answer. Wow. Eid has been celebrated is the right answer. Celebrated. Okay, let's go to the next rules. सारा रूल्स, जो भी रूल्स आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सारा रूल्स अगर क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आप सही पैसिव सेंटेंस में बात करोगे. ओके, नेक्स्ट. अब 2 रूल्स आपके सामने आ गया है, इसको अच्छे से देखो. एक्स्ट्रा वर्ब जो आएगा, इट विल बी फ्रॉम बी फैमिली. वो बी फैमिली से आएगा. जो एक्स्ट्रा वर्ब आएगा वो बी फैमिली से आएगा. इसका मतलब है, हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था, राइट? ओके, तो ये हमारा जो लास्ट में हमने छोड़ा था कुछ ऐसा था देखने में. यहाँ पे मैंने लिखा था कि एक्स्ट्रा वर्ब जो होगा वो बी, अब पता चल गया कि वो बी फैमिली से होगा. ओके, आर यू गेटिंग दिस?
Yes, sir. एक्स्ट्रा जो वर्ब होगा वो बी फैमिली से, अभी हमको पता नहीं है कि वो कौन होगा, लेकिन इतना पता चल गया कि वो किस फॉर्म, किस वर्ब होगा, कौन से वर्ब फैमिली से आएगा, इतना हमको पता चल गया। ओके, अब नंबर 5 देखो, एक्स्ट्रा वर्ब विल ऑलवेज सिट बिफोर द एक्शन वर्ब। एक्स्ट्रा वर्ब विल ऑलवेज सिट बिफोर द एक्शन वर्ब, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब कौन सा है? Killing. Killing. किलिंग। तो एक काम करते हैं, अभी हमको एक और पता चल गया कि ये जो बी होगा ये किलिंग के पहले होगा। ये जो बी है ये किलिंग के पहले आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? Yes, sir. अब ये नहीं, अब देखो कितना अच्छा, एक तो पता चल गया कहाँ से आएगा, किस फैमिली से आएगा, मुखर्जी फैमिली से आएगा कि चैटर्जी फैमिली से आएगा, तो पता चल गया कि ये बी फैमिली से आएगा। ठीक है, अब ये पता नहीं था कि राइट हैंड साइड से आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। अब ये भी पता चल गया कि ये किलिंग जो एक्शन है, एक्शन के पहले बैठेगा। अब पता करना पड़ेगा कि ये जो भी फैमिली से है उस फैमिली का कौन सा बंदा यहाँ बैठेगा, तो ये बाद में देखेंगे, अभी इससे पहले हम लोग He नेक्स्ट will be सेंटेंस में चलते हैं। killing. He will be. ओके, हम लोग बाद में बात करते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस फॉर देवब्रोतो, टेल मी दिस सेंटेंस। यस देवब्रोतो, व्हाट Yes, विल sir. बी द पैसिव? Rice. Rice. Being. Rice will Rice uh, will be will being being. Okay, will be being. Yes, sir. Rice will be being. Yes, sir. अच्छा, will be being, उसके बाद Cooking. cooking. Sorry, sir. Sorry, sir. Rice will be cooking. Rice will be cooking. Rice will be cooking. हाँ, फिर बोल दो, फिर बोलोगे इसीलिए कहा, बोलो will be cooking। हो गया, Rice will be cooking by डन। heart. अरे बाई By छोड़ दो, अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट पार्ट राइट नाउ। राइस विल Okay, बी sir. कुकिंग, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर इन एक्टिव सेंटेंस? 3 verb. Oh, active. Yes, sir. 3 verb. 3 वर्ब। तो आपको कहाँ 3 से ज्यादा करना था, आप 3 से और कम कर दिए। नहीं 3, या नहीं, आपने भी 3 लिखा है, विल बी कुकिंग। ओके सॉरी, लेकिन यहाँ तो 4 होना चाहिए था क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में 3 वर्ब्स है। Yes, sir. मानसी, कैन यू टेल मी? अच्छा, एक्स्ट्रा वर्ब जो है वो कहाँ बैठेगा? एक्स्ट्रा वो वर्ब तो आया है। एक्शन वर्ब के, तो हाँ एक्शन वर्ब के पहले बैठेगा। हाँ, तो वो बैठा है कि उसको लाना पड़ेगा? वो तो बैठा ही है बी वर्ब से। अच्छा, बी ऑलरेडी बैठा हुआ है। ओके, लेकिन ये बी कौन सा बी है? ये एक्टिव में ये जो भी बी नहीं है, ये एक्टिव में जो बी है वो बी है कि जो एक्स्ट्रा आएगा वो बी है? ये जो एक्टिव में जो था वही है। तो अभी वो जो पड़ोस से आएगा एक दूसरा बी फैमिली, उसको भी लाइए। राइस विल बी बीन कुकिंग। Yes, sir. मैंने अभी तक कुछ हाँ ना नहीं बोला। शुड आई राइस राइट? विल बी बीन कुक्ड। राइस विल बी बीन कुक्ड। बीन बीन कुक्ड, ये बोल रहे हैं राइस विल बी बीन कुक्ड। ओके, या कस्तूरी, डू यू थिंक दिस इज द राइट सेंटेंस? I think so, sir. Rice will be been. Okay, now I'll go to Rishita. Rishita, can you tell me this sentence is right or not? No, sir, it will be rice will be being cooked. Rice will be being, B-E-I-N-G. Yes, sir.
Okay, rice will be being cooked. Absolutely right. The sentence is absolutely right now. The right answer will be rice will be being cooked. अच्छे से समझो, यहाँ पे जो will be है, जो दिख रहा है, ये ऊपर से आया है, मतलब एक्टिव से आया है, और जो वो जो बाहर से एक्स्ट्रा आया है बी, वो है ये बीइंग। ये बीइंग बी आईएनजी क्यों हुआ? क्योंकि बीइंग के पहले बी फैमिली है, और पार्टनर वर्ब याद करो, पार्टनर वर्ब हमने बात किया था कि बी के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी होगा। बी फैमिली के बाद, बी वर्ब के बाद कोई भी वर्ब आएगा, एनी वर्ब विल कम आफ्टर बी, इट शुड हैव आईएनजी फॉर्म। Yes, sir. Verb Hello. partnership में वर्ब पार्टनरशिप को याद करो। Yes, yes. हेलो सर। यस सर एक्टिव में कुकिंग होगा और पैसिव में कुक्ड होगा, ये तो थोड़ा सा फर्क हो जा रहा है, तो फर्क हो कैसे रहा है, समझेगा? अभी तक रूल्स बाकी है, टेंशन मत लो, अभी और रूल्स आएगा। अभी जितना रूल्स हमने किया है, प्लीज लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, अब नया रूल हम लोग सीखेंगे। दिस इज द रूल नंबर 6 and 7। अच्छे से देखो, आप लोग का पूरा टेंशन चला जाएगा। एक्शन वर्ब विल ऑलवेज बी द लास्ट वर्ब। एक्शन वर्ब हमेशा लास्ट वर्ब होगा, और एक्शन वर्ब विल ऑलवेज बी पास्ट पार्टिसिपल। देवब्रतो, आर यू गेटिंग? आपको आंसर मिल गया? नो सर, रिपीट अगेन सर। हेलो, रिपीट अगेन सर। यहाँ पे नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है, एक्शन वर्ब विल ऑलवेज बी पास्ट पार्टिसिपल। यस सर, यस सर। मतलब आईएनजी नहीं होगा। पैसिव Yes, sir. सेंटेंस में जो लास्ट वाला वर्ब होगा वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होगा, ओके सर। ऑलवेज। पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब होगा वो एक्शन का पहले बैठेगा क्या? अरे वो वो action एक्शन verb ही ही होगा। पास्ट पार्टिसिपल बैठेगा, वो एक्शन वर्ब ही होगा। ओह, और एक्स्ट्रा वर्ब इसके पहले बैठेगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा, हम लोग ने यहाँ ये किया था ना, ही विल बी किलिंग। Yes. अब क्या होगा देखो, ये किलिंग है, किलिंग किल्ड हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, और ये जो बी He क्वेश्चन will मार्क be है, killed. ये बी आईएनजी हो जाएगा। हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? oh my God. He will be being killed. He will be being killed. This is the right answer. He will be being killed. So guys, now you know all the rules. Now I'm giving you one sentence for Kasturi. अच्छा, सब लोग अपने कॉपी में प्रैक्टिस करो हाँ ये चीज, लेकिन अभी कस्तूरी बताएगी क्या होगा एक्टिव से पैसिव सेंटेंस। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम कर लेगी। कस्तूरी बोलिए। আমি বাংলাতে বলছি, এটা কি টোটাল ফর্মে বসবে, মানে প্রত্যেক কি একটার মধ্যে থাকবে না, আপনি কোন পার্টিকুলারলি কোন রুলসে বলছেন? I'm মানে not এক understanding. নম্বর রুলস অনুযায়ী এটা বলবো না? अभी तक आपको Not जितना clear, sir. रूल्स बताया আরেকবার गया বলবেন? है, आपको अभी तक जितना रूल्स बताया गया है उस रूल्स के हिसाब Okay. से आप बताने की कोशिश करो क्या होगा। सबसे पहला रूल्स था कि आरोपी पहले बैठेगा, तो मैं अगर पहले देखता तो हर वर्क होगा पहले, उसके बाद जो वर्ब है वहां पे विल हैव वो भी बैठा देता, और विल हर हैव वक्त तो हीज वर्क होगा सर। हाँ हर वक्त तो हीज वर्क होगा।
will have has. के जगह Yeah. Yeah, Manoshi, tell me what will be the right sentence. So he have completed his work. Her work will have be completed. Have Be. be completed. have हो गया? Done? Her work will the her work will have been being completed. Yeah, Yes, Kasturi, sir. tell me her work will have. Have been have her, have have Sir, been have be being completed. Have been completed. Have been. अभी ठीक है ये Being सेंटेंस. B-E-N-G. अच्छा, BEING. ING. Have been being completed. Have be been completed. अच्छा, have के बाद being completed. Have be Oh, Some अभी noise is ठीक है. coming, sir. अभी ठीक है. अच्छा, No, आप sir. चैट बॉक्स में लिख के भेजो क्या होगा. Yeah, Devobroto, tell me. yes, sir. Her work will have been Completed. will have been completed. Yes, sir. इसमें एक्स्ट्रा वर्ब कौन सा है? 1, 2, 3. Have been Been. have been being completed. Been. अभी भी डाउट लग रहा है. Extra word been. Doubt तो है ही sir. या अर्चना जी, कैन यू टेल मी? Will have been completed. Sir, will. ये सेंटेंस सही है अर्चना जी? Her work will have no, sir. अर्चना जी और कस्तूरी दोनों का नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी. दिस सेंटेंस इज राइट. अच्छा, एकदम साउंड नहीं आ रहा है अर्चना जी. नेक्स्ट आई विल गो टू ऋषिता. टेल मी ऋषिता. Yes, sir. This sentence is right, sir. Absolutely right. This sentence is absolutely right. Her work will have been completed is the right sentence. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ब है वो है been, B-E-E-N. अच्छा, ये been क्यों हुआ? मानोशी, you said it will be be. अरे भाई, उसके पहले जो वर्ब है उससे पूछो. have के बगल में कोई भी वर्ब बैठेगा तो पास्ट पार्टिसिपल में बैठेगा. have के बाद कोई भी वर्ब बैठेगा वो पास्ट पार्टिसिपल में बैठेगा. तो बी बैठा था तो वो अपने आप को बीन बना लिया सो दैट वो हैव के साथ बैठ पाए. सो द राइट आंसर इज हर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड. देवब्रतो, व्हाट हैपेंड? Nothing, sir. अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए फिर भी. अच्छा, एक नया रूल्स देखते हैं अभी. ऑक्सिलरी वर्ब विल सिट एज इट इज. इसका मतलब है जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब जो एक्टिव सेंटेंस में, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव सेंटेंस. हाँ, ब्लू में देखिए. एक्टिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? मानोशी, कैन यू टेल मी ऑक्सिलरी वर्ब? will. ऑक्सिलरी वर्ब मतलब
एक सेंटेंस में एक्शन वर्ब छोड़ के बाकी जो उससे पहले जितने भी वर्ब हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो विल बी। एब्सोल्युटली। इसका मतलब है कि अगर एक्टिव में जितना ऑक्सिलरी वर्ब है ना, पैसिव में भी वही एकदम हूबहू एकदम जेरोक्स कॉपी बैठ जाएगा नीचे। सो एक्टिव में भी विल बी था, पैसिव में भी विल बी है। अब बी आ जाएगा तो बी के बगल में आईएनजी फॉर्म बैठेगा एक्स्ट्रा वर्ब का, तो ये हो जाएगा बीइंग, और जो लास्ट वाला वर्ब होगा वो हो जाएगा किल्ड, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल होगा, तो ये हो गया ही विल बी बीइंग किल्ड। दिस इज द राइट आंसर। ओके, इतना जानने के बाद अगर अभी कोई गलत बोला तो बहुत मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? आर यू रेडी? देवब्रतो, यू आर नेक्स्ट। विमला जी आप भी तैयार रहें। दिस इज द सेंटेंस, माई मदर कुक्ड बिरयानी। माई मदर कुक्ड बिरयानी। माई मदर कुक्ड बिरयानी। यस देवब्रतो, टेल मी। Biryani cooked our mother. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बिरयानी। यस सर, बिरयानी बिरयानी कुक्ड हो गया। बिरयानी ने किसको कुक किया था? या विमला जी बोलिए। बिरयानी। यस सर, बिरयानी। हेलो बोलो। अरे झगड़ा मत करो आप लोग। ओके, बिरयानी हैज कुक्ड। कहाँ से आया हैज? ऊपर तो हैज है नहीं, और एक्स्ट्रा वर्ब भी हैज होता नहीं है, तो हैज आया कहाँ से? ना हैज ऊपर एक्टिव में है और ना ही हैज एक्स्ट्रा आता है, तो हैज आया कहाँ से? देवब्रतो, आप अपने पॉकेट से बिल्कुल मत दो। या तो वर्ब एक्टिव से आएगा या तो एक एक्स्ट्रा वर्ब आएगा, और कहीं से नहीं आएगा। बिरयानी। अच्छा, कितना वर्ब होना चाहिए पैसिव में? दो यहाँ पे Two एक वर्ब verbs. पे cook, तो एक वर्ब तो बैठ गया, राइट? अब हम लोग अभी चाहिए एक और वर्ब। अब जो एक वर्ब आएगा वो किस फैमिली से आएगा? बी फैमिली से। बी फैमिली से, मतलब कुक के पहले बैठेगा। मतलब मैं एक क्वेश्चन मार्क कर दूं तो पता चलेगा आपको। यस, अब इतना पता है कि बिरयानी क्वेश्चन मार्क कुक्ड। अब ये क्वेश्चन मार्क के जगह आएगा बी फैमिली से, राइट? बिरयानी बीन कुक्ड। एक मिनट, अब बी का कौन बैठेगा ये कौन डिसाइड करता है? उसके पहले वाला वर्ब। लेकिन यहाँ पे बी के पहले कोई वर्ब तो नहीं है। नहीं। ऐसे केस में प्लीज लिसन, जब ऐसा केस हो कि बी के पहले कोई वर्ब नहीं है, तो बी के ऊपर में जो वर्ब है, बी के ऊपर में कौन सा वर्ब है? ऊपर में कौन सा वर्ब है? माई। वर्ब बी के ऊपर कौन सा वर्ब है? माई। बी के ऊपर मतलब बिरयानी बी कुक जहाँ लिखा है उसके ऊपर जो और एक सेंटेंस है वहां पे कौन सा वर्ब है? माई। वो वर्ब है। माई कब से सॉरी, मदर। मदर। मानसी, मदर। बी वर्ब के ऊपर में एक वर्ब आपको दिख रहा है? वास होगा। अरे ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन में कौन सा वर्ब दिख रहा है बी के ऊपर? आप कहाँ किसके ऊपर देख रहे हो? सर आप बोलिए एक्टिव सेंटेंस में कौन सा वर्ब दिख रहा है? माई मदर कुक्ड बिरयानी, सो कुक्ड इज द वर्ब। यस सर, कुक्ड इज द वर्ब। The verb when is a हाँ, तो कुक्ड इज द वर्ब। yes. कुक्ड का फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कुक्ड? Past what is पास्ट। पास्ट है। यस past सर। is
तो Past वो participle. बी का भी पास्ट ही बैठेगा यहाँ पे। So Biryani been. biryani Sir, was sir, cooked. Been. Biryani was been cooked. Biryani was cooked. been. Biryani was cooked. यस, I'm damn sure. Yes, sir. बिरयानी वॉज, अरे ऊपर ऊपर ऊपर, Yes. मैंने आप क्या अपना ऊपर देख रहे थे कि किसका ऊपर देख रहे थे? सर वो उसका ऊपर में वो तो माई मदर ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए सबको वही बोल रहा है ऊपर में वही। Okay, sir. ठीक है, शायद मेरे को बोलना चाहिए था एक्टिव सेंटेंस, बट मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा भटकाऊं नहीं, एकदम ऊपर आपको जो वर्ब दिख रहा है। अब आप लोग को इतना कुछ दिख गया। बिरयानी वॉज, सब एक ही जैसा होता है। हाँ अर्चना जी, बोले स्टूडेंट छोटा हो या बड़ा सब एक जैसा होता है। ओके, आई थिंक काफी क्लैरिटी आया है अभी तक, और मैंने बोला भी था कि जैसे जैसे हम लोग और आगे जाएंगे क्लैरिटी और बढ़ेगा। या देवव्रत, आपको लगता है कि क्लैरिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे? Yes, sir. Yes, sir. आपके आपके सांसों के आवाज से और आपके चेहरे के नॉडिंग से मुझे समझ में आ रहा है कि आप धीरे धीरे करके पैसिव से प्यार कर बैठ रहे हो। Yes, sir. ऐसा नहीं है? अच्छा चलो, एक्स्ट्रा ये अभी कहाँ से, हाँ अभी रूल्स नंबर 9, एक्स्ट्रा वर्ब विल बी फॉलोइंग द पार्टनर वर्ब कॉन्सेप्ट। ये हम लोग ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स्ट्रा वर्ब जो है वो पार्टनर वर्ब के हिसाब से बैठेगा, तो वो तो हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पे जो बी आया, एक्स्ट्रा वर्ब आया, वो अपने पार्टनर, दूसरे वर्ब के पार्टनरशिप के हिसाब से यहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब उसके पहले है बी, तो बी के पार्टनर के हिसाब से आईएनजी होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बैठा हुआ है। सो 9 इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ इट इज फॉर मानोशी मजुमदार। यस, अब कोई गलती नहीं हम बर्दाश्त करेंगे यहाँ पर। She was singing a song. Yeah, Manoshi. She was singing a song. A song was. Auxiliary verbs will be same. Sir, sir. Yes, yes. Auxiliary verb is the no one. Active में auxiliary verb है was. Was, हाँ was जो है वो तो सेम ही है। ये song was singing ing. Sir, sir. Sings. ये song Sorry, was. तो wait. सर एक तो सेंटेंस मेरे को ट्राई तो करने दीजिए एक बार, बहुत खुश है अंदर में। रुक जाओ, तुम्हारा चांस आएगा, इसके बाद में तुमको पूछेंगे। A song was being sung. Being. A song was being. A song was being singed. Sing. अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सिंग होता है sang, SUNG, sang. Yes, sir. Yes, sir. Sung. I'm damn sure. Yes, sir. A song was being sung. हो गया? Was being sung. रुकिए ना थोड़ा सा, अभी फाइनली से हो गया। इस सॉन्ग को हाँ कर दीजिए फिर। इतना समझाने के बाद ये सेंटेंस निकल के आया। इतना 10 have a positive या का एक मिनट, मैं थोड़ा कस्तूरी के पास जाऊंगा। कस्तूरी, डू यू थिंक दिस इज अ राइट सेंटेंस? कस्तूरी? Sir, a song was being sung.
अच्छे से देखो रूल्स, कहीं पे एक रूल्स वायलेट किए हो। कस्तूरी, आई एम नॉट गेटिंग एनी साउंड। देवब्रतो, Yes, sir. A song was being sung. Sung is a past tense. Okay. This is the right. past tense or past participle? Past participle. Yes, sir. This sentence is right. Why? Yes, sir. Because Manushi has said it is right, so you are also saying it is right. No, sir. A song was being फिर जब मैं राइट बोलूंगा तब मत बोलना sung. हो Sung. सर ये कैसे मैं भूल Song. गया या Sir, कैसे sir, sir, भूल sir. गई। Song. A song was being सॉन्ग, sung. Yes, sir. वाह वाह वाह, ये मजेदार सेंटेंस है। सॉन्ग वाज बीइंग सॉन्ग, Yes, sir. दिस इज सुपर सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस sir हम जीवन में पहले कभी नहीं देखा। sir हाँ, मानसी को this दिमाग में आ गया। यस, না দিমাগ में नहीं being এর মানে বি ভার্বের পর তো অলওয়েজ আইএনজি বসবে তো সিঙ্গিং তাই তো हाँ तो मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं, मैं जस्ट বাট आपको ऐसे বাট ही बोल रहा পাস্ট हूँ। পার্টিসিপল মানে যাটা শেষ হবে সেটা পাস্ট পার্টিসিপল হয় हाँ, लास्ट वर्ब विल बी पास्ट पार्टिसिपल। तो अकॉर्डिंग टू देवब्रत लास्ट वर्ब विल बी सॉन्ग। নো সাং Yes, sir. A song was being sung. Sung. S-U-N-J. Yes, sir. Sung. अच्छा, Sung. as you sung. Sung. Yes, So sir. now you think this is the right answer? Yes, sir. बी अगर wrong सर निकल बी गया तो ए सॉन्ग वाज बीन सिंग ए सॉन्ग वाज बीन संग हाँ तो वही तो लिखा है आपने। हाँ बीन हाँ ना वही तो लिखा। अच्छा, a song was बीन been, अब ठीक है। बी का ए सॉन्ग वाज नहीं सही है। आई थिंक बीन नहीं है सर, बीइंग होगा, BING। अच्छा चलो, एक 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 या तो बीन होगा या तो बीइंग होगा, अब बताओ क्या होगा। बीइंग होगा, बीइंग, BING, बीइंग। BEING। यस सर। अच्छा, अगर बीइंग नहीं होता है, बीन होता है, तो देवब्रतो विल पे 100 रुपीज टू मानुषी। और अगर बीन होता है, बीइंग नहीं होता है, तो फिर मानुषी विल पे टू देवब्रतो 100 रुपीज। मानुषी, टेल मी योर आंसर। हेलो हाँ, आंसर बताओ, आंसर। ऑलवेज लागू ओके, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। द सेंटेंस व्हिच हैज बीन रिटन हियर, इट इज द राइट सेंटेंस, एब्सोल्युटली राइट। यस सर, यस सर, सर, यस सर, यस सर। हम पहले से बहुत कंफ्यूज हुआ था क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत मजा लग रहा है सर। मजा लग रहा है। पहले सजा लग रहा था, अभी मजा लग रहा है। वाह। या Okay, let's see the another one. So guys, have you understood ये कैसे हुआ? So सोचो, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको कुछ नहीं पता था। At least right now you can create passive sentences. So this is the change which is very much important. यहाँ पे बीन कभी नहीं होगा सर, यहाँ पे बीइंग होगा। Am I right? अब जो सेंटेंस है वो खतरनाक है, और ये खतरनाक देवब्रतो के लिए है। Oh my God, सब कुछ जो खतरनाक है सब मेरे लिए। हाँ, चलो स्टार्ट। क्या my friend had, बहुत बड़ा सेंटेंस है। My friend had gifted me on my birthday. My birthday. Gifted me. I had. Yes sir, I had been gifted. I had been gifted. Yes sir. Okay.
I had I been. had been gifted. सर यहाँ पे गिफ्टिंग होगा. अच्छा यहाँ पे गिफ्टिंग होगा. Yes sir. I had been gifting. Gifting. I had been gifting by my friend अब बाई वाई नहीं चलेगा अभी, ठीक है, बाई नहीं यूज करेंगे ना. on my Subject. birthday. On my birthday. वाह. I had been gifting on my birthday. This is the right sentence. Okay. Yeah, Rishita, tell me what you think. I had been gifted on my birthday, sir. I had been gifted. एक और आंसर आया तो उसको स्लैश करके लिखते हैं. I had been gifting और I had been gifted. ओके, दोनों में से कोई एक होगा शायद. मानसी, आपको कुछ बोलना है? I had been gifted on my birthday. I Gifted had तो been होगा, ये तो होगा है, gifted होगा. गिफ्टेड तो मतलब देवब्रतो पैसिव सेंटेंस में लास्ट वाला वर्ब तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होगा. तो होगा. उसमें तो कोई चांस, मतलब उसमें तो एक बच्चा भी बोल देगा कि नहीं होगा आईएनजी. Gifted. हमने तो रूल्स में पढ़ा ही है कि कोई आईएनजी नहीं होगा या कोई नहीं होगा, ये हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही होगा. एनी डाउट देवब्रतो? Yes sir, I have something. You did very well. आपने इतना अच्छा किया. I had been, कितना अच्छा आपने किया. ये गिफ्टिंग कैसे कर दिया आपने? लास्ट वर्ड Sir, विल बी gifted. गिफ्टेड एक्टिव में जो गिफ्टेड होगा यहाँ पे पैसिव में वो गिफ्टेड सेम ही होगा. अरे वो छोड़ो ना, पैसिव में लास्ट वाला वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होगा. ओके सर, ओके. The last action verb will always be past participle, चाहे कुछ भी हो जाए. ओके सर, ओके. इतना दिमाग लगाने का ही नहीं है इसमें. I had been Okay, gifted on my birthday. तो आप लोग एक चीज अच्छे से देखो. My friend had gifted me. उसके बाद लग गया on my birthday. On is the preposition. अच्छे से सुनो ये बात. On is the preposition. Preposition के बाद कुछ नहीं होगा. जो भी आपको चेंज करना है वो प्रेपोजिशन से पहले चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव, और फिर वो ऑन से सेंटेंस को जोड़ देना पड़ेगा. तो आप देखो यहाँ पे आई हैड बीन गिफ्टेड को चेंज किया गया एक्टिव से पैसिव में. ऑन माई बर्थडे को हमने बाद में जोड़ दिया. तो कभी भी कोई प्रेपोजिशन अगर आ जाता है तो प्रेपोजिशन को पैसिव में कन्वर्ट नहीं करना, उसको बाद में ऐड कर देना. ओके सर. चलो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस में. ये सबसे धमाकेदार रिशिता के लिए, सबके लिए, लेकिन रिशिता विल बी फेसिंग फर्स्ट. The garden had been being watered by my father. So by तो नहीं लगाएंगे. So the garden had been being watered. The garden had been being watered. This is the sentence you are talking about. Yes, sir. कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे, अच्छे से देखिए. मानसी या देवव्रतो आप भी देखो, कस्तूरी आप भी देखो, अर्चना जी आप भी देखो, क्या गलत लग रहा है यहाँ पे. बहुत छोटा सा गलती है. The garden had been being watered. Be ভার্বের পরে ing হয়েছে, past participle হয়েছে last. Yes sir. So the garden had been being. The garden had been Auxiliary verb same হচ্ছে.
what part? So या अर्चना जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? आई रियली वांट कोई इसको सही करे. या ऋषिता, This is the right one, sir. I know that. Yes, sir. It is right, sir. सर आप लोग सही सेंटेंस पे शक कैसे कर सकते हो? मैंने बोला No, sir, it गलत is है तो right. आप लोग क्या शक करना स्टार्ट कर दिए? नहीं, कहाँ मैंने तो कहाँ नहीं शक किया किया? सर. हमने तो कहाँ बोला शक नहीं. हमने आप बोला लोग कि पूरा सही पूरा को false आप लोग ठीक सही है। को सही करने की कोशिश कर रहे हो तब से. कहाँ कर रहे हैं सर? हम तो देख रहे हैं. हम तो Absolutely right. The sentence is right. The garden had been being watered. Sentence is absolutely right. किसी को डाउट हो तो बताना. ओके, ये सेंटेंस मानसी और देवव्रतो के लिए सबसे खतरनाक वाला. She lives in Mumbai. She lives in Mumbai. कस्तूरी भी. अगर ये लोग नहीं बता पाए तो ऋषिता और अर्चना, वो लोग भी नहीं बता पाए तो लास्ट में बिमला जी के पास जाएंगे. She lives in Mumbai. She lives in Mumbai. Oh. फिर से बोलो. In Mumbai. इन मुंबई लिव्स. Yes, sir. Lives. ये कौन सा पैसिव है भाई? ये कहाँ से सीखे आप ये पैसिव? इन मुंबई लिव्स. या मानुषी? Live is so live and या कस्तूरी? ये बहुत इजी है क्योंकि बहुत I know बहुत इजी है. बहुत इजी है, मतलब आप जितना इजी सोच रहे हो उससे भी ज्यादा इजी है ये. अब पूरा आज जितना सेंटेंस है ना, सबसे इजी है ये. sir, live is लिव इज no leaves का जो फॉर्म है वो तो बी वर्ब से ही होगा, तो बी वर्ब से फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म वन, तो वही है प्रेजेंट फॉर्म टू. या कस्तूरी, यू कैन ट्राई. live have she live. अच्छा, आप लोगों ने कभी वो सांप और बीन बजाते हुए देखा है? तब सपेरा बीन बजाता है और सांप नाचता है, कभी देखा है आपने? हाँ सर, बहुत देखा है. Yes, sir. कभी आप भैंस के सामने देखा है बीन बजाते हुए? हम लोग वैसा ही कुछ कर रहे हैं. हम लोग भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव नहीं हो सकता. आप लोग Yes, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, ये सेंटेंस पैसिव नहीं होगा. हाँ बोलिए बिमला जी. This sentence is right. सर लास्ट में वो बोला दिस सेंटेंस इज राइट. बिमला जी बहुत चालाक है. अरे सेंटेंस गलत तो कोई भी नहीं था. सेंटेंस राइट रॉन्ग की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे. हम लोग यहाँ पे एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पे राइट रॉन्ग बोल के कुछ नहीं है. ऑलवेज रिमेम्बर माय डियर फ्रेंड, रिमेम्बर वन थिंग. आफ्टर वर्ब अगर कभी भी कोई प्रेपोजिशन होता है, आफ्टर वर्ब, यहाँ पे वर्ब कौन सा है? लिव्स. अगर वर्ब के बगल में कोई प्रेपोजिशन होता है तो वो सेंटेंस पैसिव नहीं होगा. इज इट क्लियर? यस सर. आप लास्ट वाले सेंटेंस में देखो, लास्ट के लास्ट वाले में, इस सेंटेंस में भी प्रोपोजिशन है ऑन. हाँ वो तो हाँ सर. लेकिन वो वर्ब के बगल में नहीं है. वर्ब के बगल में मी है, उसके बाद प्रेपोजिशन है. लेकिन जब प्रेपोजिशन वर्ब से पूरा सटा रहेगा, एकदम अगले, एकदम नेक्स्ट टू नेक्स्ट,
अगर वर्ब एकदम प्रपोजिशन वर्ब के जस्ट नेक्स्ट में हो, तो जैसे यहाँ पे है, इस सेंटेंस में पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया? यस सर। कैसे हम लोग बीन बजा रहे थे थोड़ी देर पहले। नहीं सर, हम वही सोचेंगे कि कैसे होगा, पैसिव सेंटेंस कैसे होगा, हम वही सोचेगा। तो हम भी सोच रहे थे भैंस नाचेगा कैसे, लेकिन वो कोई वैसा पॉसिबल नहीं होगा ना। यस सर। ओके सो गाइज, ये एक पूरा रूल्स है आपके सामने, ये अच्छे से देख लो। नंबर 10 है, इफ देयर इज एनी प्रपोजिशन आफ्टर द वर्ब, we cannot change that sentence into passive. If there is any preposition after ROP, we can change that sentence till ROP, and then after add preposition followed by the remaining ROP. अभी आपके सामने एक सेंटेंस है, मेरे को इस सेंटेंस का एक पैसिव सेंटेंस चाहिए, मतलब इसी का पैसिव चाहिए। तो प्लीज आप लोग इसको लिखने की कोशिश करें। And I want the passive sentence of the below sentence. She will have married him by next year. वो उस इंसान से नेक्स्ट ईयर तक शादी कर लेगी। What will be the passive sentence of this particular sentence? Sir, hello. Yes, Devabrata. Sir, can I say? Oh, you are ready? Yes sir. जल्दबाजी में आप कोई गलती ना कर दो। गलती होगा तो क्या होगा? नहीं, आप कुछ करना होगा, गलती होगा तो फाइन होगा, ठीक है? ज्यादा नहीं, 2000 रुपए। गलती नहीं हो सकता। हाँ बोलिए देवव्रत। अरे चलो माफ कर दिया 2000, अब बोलो। ओके सर। he will have been married by next year. By, yes sir, by next year. Yes sir. Yeah, Manushi, is it Yes, right sir. sentence? But he will have been married her by next year. Hey, is this sentence is right or you want more? He will have she का जो था, जो सब्जेक्ट पहले तो एक्टिव था, वो तो अभी तो अब लोग वो यूज नहीं कर रहे ना, बिकॉज एक्टिव में हम लोग अभी वो सब्जेक्ट पार्ट इज नॉट नेसेसरी। Okay. You will have, we have a been married. You will have been, being hobe. You will have been married. Being, B-E-I-N-G. Being married. Very good. Yes. Yeah, Rishita. Sir, Debabrata was right, sir. He will have been married by next year. मानुषी, हैव के बगल में अगर कोई बी वर्ब बैठेगा तो वो पास्ट बी पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, बीन होगा, बीन बीन। मैंने वो एम इज आर का बी वर्ब के बाद जो रहता है आईएनजी, वो यहाँ पे बी तो है ही नहीं, यहाँ पे हैव है। तो देवव्रत इज एब्सोल्युटली राइट। सर हम पता नहीं, इतना बड़ा सेंटेंस। अरे रूल्स अगर आप सही रखोगे तो बड़ा हो छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब फास्ट करेंगे, अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। अब डायरेक्टली मानुषी, टेल मी दिस, व्हाट विल बी द सेंटेंस? फास्ट फास्ट। A car had gifted
car had gifted. हो गया? Yes. No. Sir, not one. sir, can I say? A car Wait. had been gifted. Had been gifted. Had been being. Had been gifted, not being. Why being? अच्छा, car had been gifted. Okay, Kasturi, is it right? Your voice is not coming, Kasturi. I've been trying a lot, but Archana ji, is it right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The card has been gifted. Okay, absolutely right. The sentence is 100% right sentence. बहुत साउंड आ रहा है सर. देवब्रतो, आपके लिए फिर से सॉन्ग से सॉन्ग से. यहाँ पे आप कुछ गलती करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है. सर थोड़ा थोड़ा तो हम बहुत अच्छा लगाएगा, तो गलती छोटा छोटा होगा तो क्या करेगा, तो सीखेगा ना. गलती गलती, छोटा हो बड़ा हो, सेंटेंस गलत हो जाएगा. उससे ओके बड़ा ओके ओके 2000 रुपया दे देगा सर. सॉन्ग्स. he has been singing song. जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट. So, ठीक है सर. So this is the right answer. Songs have been being sung. Yes, songs है ये. sing कहाँ से आया? sing क्या बोल रहे थे? ये songs है. song plural है. songs मतलब गाना. बहुत सारे गाना है, इसीलिए यहाँ पे has नहीं have बैठेगा. तो songs have been being sung. एक्स्ट्रा वर्ब जो है वो है being, B-E-I-N-G. लास्ट वाला वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है सर. और एक तो दीजिए सर. सबसे खतरनाक. ओके सर. या मानुषी will try first. Invited me. I have been invited. I am invited. I'm invited. ठीक है. आप दो आंख से देखिए, तभी आप अच्छे से देख पाएंगी. लेकिन ये तो हुआ नहीं, पता है. नहीं हुआ तो आप कर दीजिए इसको जो करना है. I am not. I have not. या देवब्रतो. Oh, she invited me. I am invited. देवब्रतो. I am invited. देवब्रतो भी घबरा गया. I am being invited. हाँ, very good, very good, very good. No, very good नहीं है सर. आप ट्राई कर रहे थे. I am being invited. Yes, देवब्रतो. She invited. अर्चना जी बोलिए. Sir, sorry. I was invited. आजा, एक मिनट. हाँ अर्चना जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोली सर I was invited. ओके चलिए. Was invited. The right answer is I was invited. Sorry. सॉरी क्या होता है? सॉरी नहीं सर, फर्स्ट टाइम हुआ ना. इनवाइटेड जो था उसका जो फॉर्म है वही बैठेगा, क्योंकि इसमें बी वर्ब का जो फॉर्म है. नहीं समझ में आया ना क्यों वाज बैठा? हाँ सर. या देवब्रतो. यस सर. यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वर्ब जो है वो है was. यस सर. क्योंकि इसके पहले कोई दूसरा वर्ब है नहीं, तो इनवाइट ऊपर एक्टिव सेंटेंस से हमने वो वर्ब फॉर्म को लिया. ओके सर. इतना हार्ड है क्या? वही सोच रहे हैं. नहीं. हम तो अभी सीखेगा ना, इसलिए बहुत हार्ड लग रहा है. Okay, this is the last for the evening. He will be gifting me.
ये सबके लिए है। Okay, sir. स्पेशली देवव्रतो, बिमला जी और मानुषी, उसके बाद मैं आऊंगा श्री ऋषिता के पास। या बोलो। ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, एकदम दिमाग लगा के बोलो। I will be being gifted. I will be being gifted. ऐसा कहाँ Yes, से sir. सेंटेंस हो रहा है भाई? I'll be being gifted. ओके मानुषी, करेक्ट कर दीजिए आप। I will be being gifted. I will be being gifted. अच्छा, आप Right भी उसके sentence. साथ हो। हाँ, राइट सेंटेंस। मैंने मेरा तो लग रहा है क्योंकि सभी तो फॉर्म सब बैठा हुआ है, हाँ सर। या इसलिए लग ऋषिता, रहा है। राइट कर दो इसको। Sir, it is already the right sentence is written here. Okay, this sentence is right. Absolutely, I will be being gifted. Absolutely right. Very good. So very good work. You people have done very nicely. You people have understood. आज सबका दिमाग खराब हो गया ऐसा लग रहा है पैसिव में एंटर मार के। इतना दिन तक लगा था सबको कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छा एक्टिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, सब कुछ पता चल गया। आज ऐसा लगा कि कुछ नया सीखे। We have learned something new, so that is very much Yes. important. So one request from my Yeah. side. Yeah. That is that the way we have practiced the tenses with you, I also need that practice station in this Yeah, passive we'll be and doing active that. session We'll be also. doing that. We'll be Okay. doing that. Because without practice, we cannot make it. अच्छे से दिमाग में सब बैठा लो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा और आपको उसका पूरा टेंस पैसिव में, जैसा अभी आप लोग ने एक्टिव में किया था, अभी पैसिव में करना है। ठीक है? जैसे ऋषिता को मैं अभी दे रहा हूं, अभी ऋषिता पूरा एक्टिव सेंटेंस जैसा करती है वैसा पैसिव करेगी। तो ऋषिता का जो सेंटेंस है वो है they invite me, they invite me, they invite me. This is the sentence. Now Rishita will speak all the passive sentences starting from present to future. इसमें तो वो बाई तो लगाना नहीं है। Bye bye नहीं, no bye, direct. Okay. Yes. The first one Fast, is within 30 seconds, huh? Start. Sir, I am invited. I am being invited. I have invited. I have sorry. So I have been invited. I have been being invited. Then I was invited. I was being invited. I had been invited. I had been invited. I had been being invited. I will be invited. I will be being invited. I will have been invited. I will have been being invited. Whistleblowing performance. Absolutely wonderful. So I बहुत think अच्छा लग रहा है सर। सर हाँ, या देवव्रत, सिटी बहुत अच्छा लग रहा है, और एक बार हो जाइए क्या?